So we were talking about statistics and we had talked about two parts. एक हमारा descriptive statistics था where we had talked about that we basically give the emphasis of the sample, that what is the sample mean, what is the median, what is the mode, and whatever is being talked about in terms of description. And inferences, when we talk about inferential statistics, we are basically trying to check out that what are the generalizations that we can make on the basis of our sample at hand. तो एक सैंपल से हम पॉपुलेशन के बारे में क्या जनरल अजम्पशंस या क्या जनरल कॉनोटेशंस ड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. देन मूविंग इनटू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, we have within inferential statistics we have theory of estimation, and in theory of estimation what you do is you estimate the parameter. How do you estimate the parameter? You estimate the parameter either through point estimation or through interval estimation. And the other part of inferential statistics is theory of hypothesis testing. Now in theory of hypothesis testing is we assume something, we assume a claim, and then we try to check whether our claim is correct or not. Okay. So here what we do is, in this case we assume, and that assumption is nothing but a claim, okay, which we also called as a null hypothesis, and we check whether our sample conforms to, जो हमारे पास sample आया, is it conforming to the claim that we had assumed. So we check sample versus claim here, sample versus. And in theory of estimation, what do? We have the sample, and from the sample we have a point जिससे हम बताते हैं कि that point is an estimate of the entire population, or through this sample we create a range in which we say that the population parameter, for example the population mean, can lie between this range to this range. Then when we talked about point estimation, in point estimation we talked about that sample का जो कोई estimate होगा, that basically talks about that is giving you an estimate about the population parameter. And for example population mean जो है, that is an estimate of population mean का जो estimate है is through sample mean. Population variance का जो estimate है is through sample variance. So all of these are point estimates of the population parameter. Now remember guys, I told you time and again, and a couple of you asked me this question after the class as well, that estimator is the method, and estimate is the value. Please remember these two things. So a particular estimate x bar जो है, ठीक है, वो एक estimate हो गया, but एक particular value जो होगी वो एक estimate हो गई. But the method that you are, अगर आपको mean sample, अगर आपको population mean को estimate करना है and you are using sample mean, what will you call that? Will it be an estimator or will it be an estimate? If you are estimating population mean and you are using sample mean for this, is sample mean an estimator or is it an estimate? Shraddha says it's an estimate. Any other answers guys? It's an estimator. Estimate होगी जो वैल्यू हो जाएगी. जैसे sample mean can be an estimator for population mean, sample median can also be an estimator of population mean, sample mode can also be an estimator of population mean. That is what I was drawing the point to. ये methods हैं, all of these are methods to estimate population mean. There could be multiple methods to estimate population mean. Okay? So therefore do remember, and a particular value of x bar, a particular value of median, a particular value of mode, what will that be? Come on guys, those will be estimates. Exactly. Okay? Now each of these will vary from sample to sample. Each of these estimates will vary from sample to sample, which is called as sampling error. हर sample से एक नया estimate, एक different estimate आएगा. So that is called as sampling variation या sampling variance या sampling error. ठीक है. And जो आपका ये point statistic आया, x bar की जो value आई है,
in itself this x bar is a random variable because its value will move from sample to sample. एंड यहीं पे हम CLT यूज करते हैं एंड हम कहते हैं कि इस x बार जो ये x बार होगा इसकी एक अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इफ n is greater than 30 then this distribution will have mean as mu, which will normally distributed mean as mu and variance as sigma upon under root. So this will be the your entire, this will be the variance. We are talking about variance here. So this is what we had talked about. Then coming to sampling error हर जगह sample to sample move करता रहेगा, उसकी वजह से आता है. Then we came to interval estimation. And in interval estimation, what we did was we had just extended our entire analysis and said that because x bar या कोई भी एक estimate जो होगा, any estimate that you take, whether mean, median, mode, कोई भी आप estimate लोगे, वो estimate जो होगा it will move from one sample to another sample. वो sample values से change होता रहेगा sampling variance की वजह से, ठीक है. and इसीलिए एक पॉइंट बताने से अच्छा कि ये हमारा सैंपल का जो मीन आया है ये इज रिफ्लेक्टेड ऑफ पॉपुलेशन मीन, व्हाट वी डू इज वी गिव अ रेंज एंड उस रेंज में बताते हैं कि पॉपुलेशन का मीन जो है बॉस इस रेंज में लाई कर सकता है. तो हमारे पास एक सैंपल का मीन आया और उस सैंपल के मीन के आसपास की हम एक रेंज निकाल देंगे और लोअर लिमिट एंड एन अपर लिमिट. एंड विद दैट व्हाट वी डू इज, जैसे ये सैम्पलिंग मीन्स हैं सारे, ये सैंपल मीन 1, ये सैंपल मीन 2, ये सैंपल मीन 3, ये सैंपल मीन 4, ये सैंपल मीन 5, एंड इन सबका भी एक मीन होगा, मीन ऑफ सैंपल मीन्स. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स. एंड व्हाट वी डू इज we take a range of these and say that your population mean should lie between or may lie between this range with a particular probability. And how is that done? हमें पता है that x is a normally distributed variable. If x is a normally distributed variable, using CLT we say that x bar का distribution ये होगा. And अगर हमें x bar का distribution पता है, we can standardize it. We have standardized it. And once we have standardized it, तब हम इस पे आराम से z table की properties लगा सकते हैं. And z table की properties लगा के हम इसमें क्या कर सकते हैं? We can say that probability of z lying between a particular range, say मैं कहता हूँ कि 95% वाला जो range है वो alpha by 2 minus probability x bar minus z alpha by 2 into ये हम रेंज निकाल सकते हैं. समथिंग दैट यू वुड हैव आल्सो डन इन स्टैटिस्टिक्स. ये हमने रेंज निकाल दी क्योंकि हमें पता है कि z टेबल जो है एक रेंज के अंदर लाई करता है. व्हेन वी नो दी z टेबल, वी नो कि z का माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के बीच में वी नो दैट 95% एरिया है एंड यहाँ पर 5% एरिया. So because we know all of that standardization, we can use that. Now taking an example, this is an example that it's actually similar to, the figures are actually similar to what we had taken earlier as well. That we have a player जिसका कुछ mean है. Now this batsman has 28 innings जिसमें he has averaged 23.25 with a standard deviation this. Now we want to say that what will be the population mean. ये sample का है. So what we have is sample की values. We have got sample values and these sample values are telling us that sample का mean ये है, sample का variance ये है, n ये है. हमारे पास population का वो नहीं है. So what we do is बिल्कुल simply what we do is we calculate for interval estimation. We calculate in lower interval and an upper interval and हम बता देते हैं कि this is the interval in which the population this thing mean will lie with certain level of confidence. Then interval estimation हमने करा कैसे? Interval estimation हमने किया that we know कि at 27 degrees of 28 innings थी तो 27 degrees of freedom पे हमने ये t की वैल्यू निकाल ली and t की वैल्यू हमने कहा कि 27 degrees of freedom पे 2.05 और -2.05 के बीच में you have 95% एरिया.
एंड ये t की वैल्यू जो है हमने बस रिप्लेस कर दी, दिस t की वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस कर दी, एंड वी देन वर्कड आउट द इंटायर इक्वेशन, एंड हमने म्यू का एक रेंज बना दिया, एंड दैट इज हाउ वी गॉट दिस रेंज, दिस सोल्यूशन ऑफ 19.5 and 26. Then properties of point estimators. Properties of point estimators are linearity. So point estimators की three major properties that we need to know is that of linearity. A linear estimator is said to be जहाँ पर sample observations का एक linear function होगा. So यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो mean था that is using all of these values, linear function of all these values of all the observations. Therefore, it's a linear estimator. Then when we talked about biasness or unbiasedness, what we talk about is that the expected value of x bar. तो ये जो हम बात कर रहे हैं this, ये जो expected value है इसकी expected value of the distribution of x bar, the expected value of x bar should be equal to population mean. That is what we call as unbiasedness, that the expected value of x bar is equal to the population mean, and that is called unbiasedness property. Then the other property that we saw was minimum variance, and in minimum variance we saw that the among the different classes of estimators that are available, the one which has the minimum variance is called as the best, but we have to also see that it is unbiased as well. तो जहां पर linearity, unbiasedness and minimum variance तीनों मिल जाते हैं, we call that as a blue estimator. Then we moved on to the concept of hypothesis testing. In hypothesis testing we see, अभी हमने theory of estimation में point estimate and interval estimate देखा. In theory of hypothesis testing, what we do is we set up a claim. ठीक है, हम कहते हैं instead of saying कि ये हमारा जो mu x है वो इस रेंज में लाई करेगा या ये होगा given the population, हम assume कर लेते हैं. We assume a population. तो हमने assume कर लिया. For example, हमने यहाँ पर assume कर लिया कि पॉपुलेशन है उसका मीन जो है वो 18.5 है. नाउ ये हमारी assumption है. So we have assumed a population with this particular mean. Now the problem is, now the issue is, जो हमारे पास सैंपल आएगा उसका मीन ये होगा या कुछ और हो सकता है ना. टेल मी गाइस, पॉपुलेशन का जो मीन आएगा, जो सैंपल का मीन आएगा, ये हमारी assumption अबाउट पॉपुलेशन. दिस इज द assumption अबाउट पॉपुलेशन. जो सैंपल से मीन आएगा वो इसकी इक्वल होगा या डिफरेंट हो सकता है. इट मे बी और इट मे नॉट बी इक्वल टू द सेम. ठीक है. सो अब दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है. और इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर्स एंड पी वैल्यू. नाउ पॉपुलेशन से, ये पॉपुलेशन का हमने अजम्पशन किया है. नाउ सैंपल से जो हमारे पास वैल्यू आई वो ये आई. सैंपल से जो वैल्यू आई वो ये आई. सैंपल का ये मीन है और ये पॉपुलेशन का, दिस इज द पॉपुलेशन वैल्यू दैट वी हैव टेकन. नाउ व्हाट वी एक्चुअली नीड टू चेक इज दैट आर दीज टू वेरी क्लोज टू ईच अदर और आर दे वेरी डिफरेंट टू ईच अदर. इज द सैंपल दैट यू आर जनरेटिंग coming from the population जो हमने assume करा है, और is the sample representative of a different population altogether. Try to understand this concept guys. This is a very important concept. ये आपकी assumption है about population and this is what you get out of sample. This is what you got. What you are trying to check is that are these two distributions the same, or can you call them to be to be the same distribution? Or what you can also say is that is this x bar coming from the distribution of this population? Is it coming from this population, or is this x bar so different from mu x that it is coming from a different population altogether? That means what you are saying is कि ये जो sample है it is not reflective of what your assumption is,
and that is where you reject the null hypothesis. If you do not reject the null hypothesis, what you say is that this sample का जो mean आया है, that is very close to what you had assumed, and you can say that these two are similar and you do not reject the null hypothesis. ये mean यही है, सिर्फ सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से वो मीन जो आपका सैंपल का मीन आया वो डिफरेंट है. बट इफ इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम what you have assumed, then you have to say that boss, the sample is coming from altogether a different population than what you have assumed. This is the crux, guys, and this is nowhere there in the in the readings or in any of the analysis. And if you have understood this concept, then it's going to be in cakewalk to understand type 1 type 2 errors. समझ में आया कि नहीं आया? ये क्रक्स है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का. आया नहीं आया गाइस? अगर ये चीज समझ में आई ना, अब my next question to you is कि okay, let me first explain this. हर्षिता क्या चीज समझ नहीं आई? Yes हर्षिता, क्या चीज समझ नहीं आई? What I'm trying to tell you is कि आपने पॉपुलेशन के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप एक अजम्पशन लोगे. What that assumption will be कि आप अज्यूम करोगे पॉपुलेशन, सपोज हम पॉपुलेशन का मीन पता करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. यहां पर एस्टिमेशन के अंदर क्या करते थे? एस्टिमेशन के अंदर तो वी यूज टू गिव अ रेंज कि इस रेंज में लाई करेगा पॉपुलेशन मीन. बट यहां पर आप अज्यूम कर रहे हो कि पॉपुलेशन मीन ये है, कुछ पर्टिकुलर फिगर है से 18.5. नाउ ये तो होगी आपकी अजम्पशन. नाउ यू आर गोइंग टू चेक इट विद रियलिटी फ्रॉम सैंपल. ये आपने कुछ म्यू एक्स अज्यूम किया, रियलिटी फ्रॉम सैंपल आया एक्स बार. ना हर्षिता बताओ, ये यू एक्स और एक्स बार सेम हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं? इट मे बी और मे नॉट बी सेम. आपने अज्यूम किया कुछ, वो कुछ सैंपल से कुछ और आ गया. तो बिकॉज दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट यू नीड टू चेक इज आर दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इज द डिफरेंस ओनली बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन, क्योंकि हर सैंपल से अलग मीन आएगा ना. तो इज दिस म्यू एक्स एंड एक्स बार, are they very far from each other? Are they very different from each other? Just a second, guys. So what we are trying to check is the mu x and x bar similar to each other, or are they close to each other, or just a second, guys. Are they close to each other or are they different to each other? Okay, that is what you need to check. So ux and x bar, if they are close to each other, that means ये जो दो वो आए हैं, let me, अगर ये पास में होगा तो कैसे होगा? ये आपका म्यू एक्स का है, ये आपकी assumption, and you draw second one, ये आपका samples. Now if they are close to each other, तो ये distributions overlap करेंगी कि overlap नहीं करेंगी? अगर ये पास में होंगी तो ये distributions overlap करेंगी कि नहीं overlap करेगी? Come on guys, it will overlap. ठीक है. और ओवरलैप का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है ये एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये आपस में देखो ना, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस दूर हैं पर ये आपस में पास हो गई. अगर ये पास हो गई तो ये ओवरलैप कर रही हैं. इफ दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, दैट मींस हो सकता है ये एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ये जो एक्स बार आया हो ये सिर्फ सैम्पलिंग की वजह से अलग आया हो, बट ओवरऑल ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है. इट इज पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. सो the closer that they're together, it basically means that the x bar that you have got from the sample is kind of reflecting the population, and ये दोनों distributions same है, similar हैं काफी. and अगर ये similar हैं, then what you have assumed is correct, as compared to आपने ये assume किया और आपका सैंपल से ये आया. These distributions do not overlap with each other. They're two separate distributions altogether. In that case, this sample is not reflecting what you have assumed. The ground truth through the sample and what you have assumed are not in conformity to each other. And in this case, you reject the null hypothesis. These are cases when you reject the null hypothesis. And these are cases when you do not reject the null hypothesis because there is not sufficient evidence to reject it. This is the crux of hypothesis testing, while showing you not just in terms of numerical but also in terms of theory and in terms of distributions की कैसे है. आपको हर कोई बता देगा कि अच्छा ये claim है, p value check कर लो,
ये चेक कर लो, but these are just mathematical ways. That is not the spirit of hypothesis testing. This is the spirit of hypothesis testing, that how far, how overlapping, how different is samples distribution with what you have assumed as a distribution. समझ में आया? Then there are three methods of hypothesis testing. We've seen two of them yesterday. One was test of significance, the other was confidence interval approach, and the third one which we will check is p-value approach. Okay, these are the three values. Now the process क्या होता है? Usually these are complementary to each other. Both the processes, your statistical, your theory of estimation and hypothesis testing are complementary to each other. कैसे? पहले आप एक एस्टिमेटर यूज कर निकालते, जैसे सैंपल मीन हुआ, फिर आप देखते हो कि अच्छा यार जो मैंने सैंपल मीन लिया है और जो पॉपुलेशन का होगा वो जरूरी नहीं सेम हो, ठीक है, तो आप वो देखते हो कि हाउ गुड इज द एस्टिमेट. देन आप अज्यूम करते हो इसके बारे में. व्हाट यू डू इज यू मेक एन अजम्पशन अबाउट इट कि यार पॉपुलेशन का मीन जो होगा ये है, ये अज्यूम कर रहे हैं, एंड देन यू चेक वेदर दिस assumption that you have taken is correct or is it not correct. Again, there are errors involved there. You might think कि अच्छा यार ये क्लोज है बट एक्चुअली में वो क्लोज ना हो, और you might see कि अच्छा ये क्लोज है बट एक्चुअली में वो क्लोज हो, ठीक है. तो दोनों तरफ के एरर्स हो सकते हैं. You might think कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत पास में है एक दूसरे के, तो we do not reject the null hypothesis, ठीक है. बट एक्चुअली में ये जो x बार आया था वो सैम्पलिंग एरर की वजह से x बार पास में आ गया. एक्चुअली में वो पॉपुलेशन डिफरेंट है, पॉपुलेशन का मीन डिफरेंट है. सो वी विल कॉल दैट एज टाइप 1 एरर. वी विल सी दैट टुडे. एंड ये भी हो सकता है कि आपको जो सैंपल से मिला वो आपको बहुत दूर मिल गया एंड यू से दैट आई रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बट एक्चुअली में इट वाज वेरी क्लोज. ये सिर्फ सैम्पलिंग एरर की वजह से आपको दूर दिखाई दिया. सो वी विल टॉक अबाउट दीज टू डिस्ट्रीब्यूशंस एज वेल. When we talk about hypothesis testing example, तो हमारे पास null hypothesis and alternative hypothesis होता है. We have seen all of this. ये हमने cases देखे हुए हैं, ये हमने case already कर लिया है. p-value approach. Now in case of p-value approach, what we do is हम सबसे पहले जो हमारा test statistic आया, so if this is the test statistic, जो हमारा test statistic आया ये यहाँ से, ये जो value आई हम इसको निकालते हैं. So what we do is we go and check what is the test statistic. टेस्ट स्टेटिस्टिक निकालने का हम x बार और म्यू एंड उन सबसे हमें टेस्ट स्टेटिस्टिक मिल जाएगा. एंड देन वी चेक दी z टेबल और वी चेक दी t टेबल. t टेबल चेक कर लो, या फिर यू कैन ऑल्सो गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. आई विल सेंड यू द लिंक एंड ऑल यू नीड टू डू इज पुट ऑन ऑल दी वैल्यूज एंड यू विल गेट इट कि कैसे आप टेस्ट स्टेटिस्टिक निकालते हो. लेट मी शो इट टू यू ना. हमारा इससे हमारा t की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? 2.64 आई थी. लेट्स टेक 2.64, यहाँ पर डालो 2.64. यहाँ पर हमारा df कितना था गाइस? एनीवन रिमेंबर्स? df 27 था. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज पुट आउट योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. वो तो आप कुछ भी डाल लो. एंड हमारा टू टेल टेस्ट है. द मोमेंट दैट यू रन इट यू विल गेट कि माई p वैल्यू इज दिस. नाउ ये आपके पास p वैल्यू आ जाएगी एंड ये p वैल्यू जो है, अब लेट्स चेक ये p वैल्यू कैसे आई. हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 2.64, इसके राइट में हम एरिया देखना चाह रहे हैं कि कितना एरिया. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू दैट वी हैव गॉट एंड वी वांट टू चेक द एरिया टुवर्ड्स द राइट ऑफ इट. और क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो इस माइनस में भी सेम चीज एंड उसके लेफ्ट में कितना एरिया, एंड देन ऐड दोस टू एरियाज. तो हम जब टेबल्स में चेक करेंगे और वेदर वी डू इट ऑनलाइन जैसे भी, हमें पता चला कि दिस एरिया इज 0.133, ठीक है, 1.33% एरिया. दिस 1.33% एरिया इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये वाला एरिया इक्वली, जैसे वो 5% एरिया होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2.5% right tail and 2.5% left tail. This entire area is divided into two parts, half here, half here. Now what it tells us is that what is the probability of getting a value more than 2.64, ये बता रहा है.
जैसे probability of getting a value test statistic more than this particular value is 2.5% and माइनस में भी ये 2.5% तो 5% हो जाएगा. Similarly, getting a value more than 2.64 is 1.3%. Whereas the level of significance that you wanted was 5%. आपकी अल्फा था 5%. व्हाट इज दिस अल्फा? हम बेसिकली बोल रहे हैं कि ये हमारा पॉपुलेशन की ये 18.5 वाली वैल्यू है, और जो सैंपल से आई है वैल्यू वो जो आई है 23.25, वो कहाँ लाई कर रही है, हम ये देखना चाह रहे हैं. एंड इफ इट इज वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, अगर ये बहुत दूर है, जैसे हमारे केस में ये बहुत दूर हो रही है वैल्यू, तो हम बेसिकली यहाँ पर एक कट ऑफ पॉइंट बताते हैं. we take a cutoff point and we say that any value which is greater than this particular value, we will say कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन ये किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से है, it is not conforming to our assumption. This particular cutoff value that you take is nothing but the level of significance. This is the level of significance at which you will reject the null hypothesis. What you are trying to say here is कि इसके बाद का जो एरिया है वो सिर्फ 5% है. 5% मैं एरर ले सकता हूं. What is that 5% एरर मैं ले सकता हूं? कि 5% इस केस के अंदर ये वो वाला एरिया है जहां पर इस कर्व के अंदर you have only 5% area left. Now what I am willing to say is that I am willing to consider the error. I'm willing to basically acknowledge the error that I can make, where in 5% cases I make an error. What is the error that I am making? I am making the error इस रेंज में आके मैं रिजेक्ट करूंगा कि डू नॉट रिजेक्ट करूंगा. इफ एनी वैल्यूज कम्स इन दिस रेंज तो मैं उसमें रिजेक्ट करूंगा कि डू नॉट रिजेक्ट करूंगा. कम ऑन गाइस, अगर इस रेंज में वैल्यू आएगी तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं कि आई डू नॉट रिजेक्ट इट. इस रेंज के बाद की वैल्यूज को हम रिजेक्ट करते हैं कि वी डू नॉट रिजेक्ट इट. वी रिजेक्ट ऑल पॉइंट्स, एवरीथिंग जो हमारे रिजेक्शन रीजन में आएगा. तो अगर हम इस रेंज में सब कुछ रिजेक्ट कर देंगे तो देयर माइट बी एन एरर दैट वी आर टेकिंग. हम कह रहे हैं कि रिजेक्शन है, बट देयर इज अ 5% चांस कि ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट था. बट आपने, बिकॉज वो वैल्यू बहुत डिफरेंट आ गई, यू सेड दैट नो, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल टुगेदर. दैट इज what you are talking about a probability where you are saying that you are rejecting H naught, but the null hypothesis was true. This is what you are doing. इस एरिया में आ गई तो आपने रिजेक्ट कर दिया, बट जब आपने इस एरिया में रिजेक्ट कर दिया था तो आपने वो एरिया सेट किया था 5% का, कि एनीथिंग विच इज मोर देन, अगर ये एरिया 5% होगा तो मैं उसको रिजेक्शन वाले रीजन में आएगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा. बट आप वो एरर मान के चल रहे थे that you might be making an error in 5% cases, and that is what is called as level of significance. Alpha is what you set, that this is the acceptable level of error that I can take. And if the p value, जो आपकी observed test significance, जब आपने टेस्ट रन किया, जो आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आई, वो इस रिजेक्शन रीजन में आ गई, तो उस रिजेक्शन रीजन के बाद का जो उसका उस टेस्ट स्टेटिस्टिक की जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है, उसके राइट में जो रीजन है वो आप निकालते हो. इफ दैट एरिया, इफ p is less than alpha, then you will say that I will reject my null hypothesis. Why are you saying you will reject the null hypothesis? Because वो rejection region के अंदर, in general whenever you see p value, आप सिर्फ p value चेक करते हो. अगर आपकी p value alpha से कम है, so if p value is, जैसे इस केस में 1.3% है और आपका alpha 5% है, सिंपल है, that you will reject the null hypothesis. क्योंकि ये वाला जो एरिया आया है ये कम है, और ये जो आपका जो रिजेक्शन वाला जो रीजन था वो 5% था.
तो यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो इस p वैल्यू को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि एक्चुअल सैंपल से क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया, और ये है द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% एक्सेप्टेड था, आया 1.3%, तो हम कह देंगे वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दैट मींस इस सैंपल के लिए हमारा जो पॉपुलेशन आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, तभी वो आया है। दिस इज कॉल्ड एज द p वैल्यू अप्रोच। If p is less than equal to alpha, we will reject the null hypothesis. If p is greater than alpha, we do not reject the null hypothesis. That is how this is built. यहां तक समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर नहीं समझ में आया, किसी को भी समझ नहीं आया तो पूछ लो कि अच्छा नहीं समझ में आया, आई कैन गो 2 times 3 times to explain this concept, बट एक बार ये समझ में आ गया तो जिंदगी भर साथ रहेगा। Yes. So here I get why when p is less than alpha we can reject. Why do we have the equal to case here? Because in that case वो बिल्कुल margin पे आ गया ना। So बच्चा, what is happening is if this is what we get, exactly same value हो गई, तो मार्जिन पे है, you can reject it, you may not, usually हम जो connotation हमारा होता है हम कहते हैं कि अगर equal to b है तो आप reject कर दो, that is how we take it. If p value, observed value, अब now the question here is, एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, that suppose the p value, suppose the observed level of जो t statistic आता, अगर वो आता 1, अगर वो आता 2, तो वो यहाँ लाई करता, राइट? अगर वो यहाँ लाई करता तो वो यहाँ कब लाई करेगा? वो यहाँ तब लाई करेगा कि जब यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होती इस तरीके से, उसका मीन ये आ रहा होता, तभी तो ये 2 वैल्यू आ रही होती ना। ये चीज समझ में आई? दिस इज द सैंपल एंड दिस इज द, व्हाट इज दिस? पॉपुलेशन अजम्पशन, याद रखना, पॉपुलेशन अजम्पशन। तो एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज, इसी को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। दिस इज जस्ट द सेम एज 18.5, और ये वाली वैल्यू जो इसकी वाली वैल्यू आई थी ना, सपोज ये आती है हमारी 2 के अलॉन्ग, सपोज मैं मानता हूं कि 20 आती, और ये हमारी 23.5 वाली थी। तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत पास में हो गए एक दूसरे के, तो ये वाला जो पॉइंट आया, ये इसके इस पॉइंट के दिस पॉइंट दैट वी हैव, द टी स्टैटिस्टिक दैट वी गेट, वी कैलकुलेट द एरिया अलोंग साइड इट एंड वी कैलकुलेट दिस एरिया, तो हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर ये 2 वैल्यू होगी तो यहाँ पर भी ये 2 वैल्यू होती, यहाँ पर भी ये 2 वैल्यू होती, यहाँ पर भी ये 2 वैल्यू होती, तो ये वाला एरिया भी कैलकुलेट करते हैं एंड वी वुड हैव फाउंड that this area of entire red is greater than the area that was acceptable. ये हम लेके चल सकते थे, this was the area that we could have accepted. तो हमारा area that could have been accepted, जिस एरिया के अंदर हम रिजेक्ट कर सकते थे, वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। जिस एरिया जो हमारा आ रहा है से इट इज 10%, तो हमारा p is greater than 10% is greater than 5%, so we do not reject. We say that both these distributions are similar to each other and the sample is in all likelihood coming from this population which has mean as 18.5 with an error that we can make, with some error. अभी वो मैंने error नहीं बताया. Are things clear till this point? And another thing to add, whenever you do not reject the null hypothesis, you say that the test statistic is insignificant. You say the test statistic is insignificant. Whenever you reject the null hypothesis, you say that the test statistic is significant. Anu says, sir, is alpha or assumption? Alpha is something that you take. कि आप लेवल कितना probability of error आप accept कर सकते हैं. It can be 10%, it can be 5%, it can be 1%. इतना आप error ले सकते. That is something that you choose. If this is clear, guys, then let me tell you the process क्या है. पहले आप H0 या HA और HA लोगे, then आप test statistic निकालोगे, then आप compute करोगे value of P value which is corresponding to this T statistic या Z statistic. Then if your P is less than alpha, then you will reject the null hypothesis and you will draw the conclusion. कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में हमने क्या किया? कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में जो हमने पहले देखा था वही सेम चीज करी.
हमने ये इंटरवल निकाल लिया, ठीक है, हमें इस इंटरवल में पता है 95% वैल्यूज रहती हैं, हमने ये इंटरवल निकाल लिया और हमने बस सिंपल चेक किया कि जो हमारा अजम्पशन था ये हमारा सैंपल से आया इंटरवल, और जो अजम्पशन था 18.5 वो 18.5 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इस रेंज में नहीं आ रहा तो डू नॉट रिजेक्ट, रेंज में नहीं आ रहा तो रिजेक्ट कर दो। इस केस में हमारी एक्सेप्टेंस रेंज ये थी और हमारा जो वैल्यू आई, जो हमने वैल्यू अज्यूम करी वो 18.5 इस वाले रिजेक्शन वाली रेंज में, तो वील रिजेक्ट देना। सो ऑल यू डू इज सेम चीज, फर्स्ट यू सेट अप योर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देन यू कंप्यूट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, then you reject the null hypothesis if it is outside the population parameter, okay, if the population parameter does not lie in the confidence interval, and then you draw. This is the summary of your entire t-test, two tail and one tail, two tail के केस में and one tail के केस में ये आपकी summary है, how do you take decisions, ठीक है, I'll send you a picture of this, and similarly z test के केस में ये हमारी is p-value, confidence interval approach and test of significance clear. ये तीन alternative approaches हैं of hypothesis testing, and I'm not going to get into them any further during our classes. I'm going to assume that you know all of this inside out, and it's taken an incredible amount of effort to make these slides, guys. I hope अब इससे ज़्यादा कुछ अब करने की जरूरत नहीं है, at least in hypothesis testing. This is much more beyond what even the books tells you. Let's move on to what are errors in hypothesis testing. Okay, we'll get into errors of it. Now let's talk about type 1 error and type 2 error. पहले हम type 1 error के बारे में बात करें. Now what is this type 1 error? Now type 1 error हमने assume क्या किया था, सबसे पहले हमने assume किया कि, और हमारे केस में हमने क्या किया, हमने reject कर दिया null hypothesis, right? चाहे आप confidence interval approach से लो, चाहे आप p value approach से लो, चाहे आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच से लो. नाउ आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस. हमने इसको रिजेक्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे कैसे किया था, हमारी क्या वैल्यू आई थी और हमारे एक्सेप्टेड वैल्यू का लेवल क्या था? एनीवन रिमेंबर्स? कम ऑन गाइस. हमारा एक्सेप्टेबल कुछ 2 पॉइंट क्या था वो वैल्यू, और हमारी वैल्यू क्या आई थी? एनीवन रिमेंबर्स? हमारी वैल्यू क्या थी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? हमने वैल्यू कट ऑफ पॉइंट क्या था? 2.52 ये था गाइस, 2.52. हमारी वैल्यू क्या आई थी? 2.64. समझ में आया कि हमने क्यों रिजेक्ट किया था इस केस में? हमने p वैल्यू में क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि p वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग जो p वैल्यू आई थी उसका जो एरिया आया था वो था 1% और जो हमारे एक्सेप्टेबल लेवल था वो 5% था, तो हमने रिजेक्ट किया था. एंड जब हमने ये वाला चेक किया था तो हमने देखा कि हमारी रेंज ये है और हमारा अजम्पशन ये है, तो हमने रिजेक्ट किया था. सो तीनों तरीके से हमने अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट किया, बिकॉज आवर सैंपल एविडेंस वाज दिस एंड इट डज नॉट सीम टू बी कंपैटिबल विद दिस हाइपोथेसिस. यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही करा हमने अभी तक. नाउ डज दैट मीन कि ये जो सैंपल आया है इट कैन नॉट कम फ्रॉम अ पॉपुलेशन फ्रॉम जिसका मीन 18.5 है? ऐसा भी तो हो सकता है. हमने क्या बोला था, हमारे सैंपल के अंदर वेरिएशंस भी तो हो सकते हैं. हमारे पास एक भूला भटका सैंपल आ गया जिसका मीन बहुत ज्यादा था, जबकि पॉपुलेशन जो हमने अज्यूम करी थी 18.5 जो हमने अज्यूम करी थी ये ट्रू था, बट गलती से बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन, क्योंकि सैंपल तो सैंपल है, सैंपल की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आउटलायर्स आ सकते हैं सैंपल में, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल शार्दुल ठाकुर भी किसी मैच में सेंचुरी बना सकता है, उसका ये थोड़ा ना मतलब कि वो उसको आप ओपनिंग करा दोगे. समझ में आया कि वो एरर हो सकता है, वन ऑफ इवेंट हो सकता है. सो अगर वो वन ऑफ इवेंट हो सकता है तो उसकी वजह से, वन ऑफ इवेंट की वजह से जो सैंपल का मीन आया वो हो सकता है बहुत दूर आ गया. बट you cannot be 100% sure that this sample mean is and that you've correctly rejected your null hypothesis, because आप क्या एरर लेके चल रहे थे? आप 5% एरर लेके चल रहे थे. In 5% cases you were willing to accept that error. You are saying that अगर
सैंपल का जो मीन आएगा वो इस रेंज में या इस रेंज में आएगा, तो आई विल से दैट दिस सैंपल इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ द assumption that I've taken. There is 5% chance, right? So the confidence interval is 95% and not 100%. तो ये जो आपने परसेंटेज ली है, ये जो आपने अल्फा की वैल्यू ली है, दैट इज नथिंग बट टाइप 1 एरर. क्योंकि इस रेंज में अगर वैल्यू आ जाती है, what are you saying? You are saying 5% values can lie in this range with mean as 18.5. That means in these 5% cases you will reject the null hypothesis. And if you are rejecting the null hypothesis, just a second guys. Yes. So if you are rejecting the null hypothesis, you might be making an error. In how many cases? You might be making an error 5 out of 100 times. 5 out of 100 times you might be making an error while rejecting. And that is why alpha is called as probability of rejecting, क्योंकि ये rejection वाले region में आया है, a null hypothesis, but when it is, so we write alpha as probability of true H naught, probability of rejecting H naught when एक्चुअली में सैंपल जो आया था वो एक्चुअली में वो सैंपल वेरिएशन की वजह से सैंपल अलग आ गया था, बट वो लाई इस पॉपुलेशन के अंदर ही करता है. द अजम्पशन दैट यू टुक वाज करेक्ट, बट स्टिल यू रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस. दैट इज कॉल्ड एज type 1 error, which is also called as alpha, that you pick by yourself कि ये मेरा alpha है. The probability of wrongly rejecting a null hypothesis. It is the level of significance set for the hypothesis. This suggests that one is willing to accept a 5% chance that you will reject a true. All of these are analogous statements. Is type 1 error clear or not? अगर ये type 1 error clear नहीं है तो पूछ लो कि type 1 error clear नहीं है. Anyone else? निशा के अलावा? हमने जब ये assumption ली 18.5 की, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई सैंपल आता है और उस सैंपल का मीन बहुत ज्यादा दूर होता है फ्रॉम व्हाट आई हैव अज्यूम्ड. सैंपल का मीन बहुत ज्यादा दूर होता है फ्रॉम व्हाट आई हैव अज्यूम्ड. सैंपल का मीन इस रेंज में होता है या इस रेंज में होता है, देन आई विल से कि द सैंपल डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन. और व्हेन सैंपल डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन, व्हाट डू यू डू निशा? क्या बोलते हैं हम, क्या करते हैं? जब सैंपल पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो हम रिजेक्ट कर देते हैं कि यार बस जो आपने अजम्पशन लिया है ना वो गलत है, सैंपल तो कुछ और ही बता रहा है. तो बट जब आपने रिजेक्शन का ये पॉइंट सेट किए थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब आपने सेट किया था, तो आपने कुछ एरिया सेट किया था, आपने कुछ परसेंटेज ऑफ एरिया लिया था कि ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है. तो आपने कहा था कि 95% रीजन मैं ले लूंगा यहाँ पर, बट 5% एरिया में मैं रिजेक्ट कर दूंगा. मतलब इस कर्व के, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अगर 5%, 2.5% यहाँ और 2.5% एरिया यहाँ में अगर सैंपल की वैल्यूज आएंगी तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा. बट ये भी तो हो सकता है एक्चुअली में जो आपकी अजम्पशन थी वो ठीक थी, बट क्योंकि एक सैंपल जो था वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सैंपल था, वो एक लोडेड सैंपल था, वो एक बायस सैंपल था, उसके अंदर कोई आउटलायर था. बिकॉज ऑफ दैट सैंपल एक्चुअली केम आउट, उस सैंपल का मीन यहां आ गया, बट एक्चुअली में वो इस पॉपुलेशन का ही है. एक्चुअली में जो आपने अज्यूम किया है वो ठीक ही अज्यूम किया है. अगर किसी बैट्समैन की एवरेज 18.5 है, ये समझ के चलो, अगर किसी बैट्समैन की एवरेज 18.5 है तो ये भी तो हो सकता है कि वो बैट्समैन के कुछ दिन अच्छे चल रहे हों, ठीक है, और वो लगातार 50s मार रहा हो. समझ में आई ये चीज? उसने 3-4 मैच में 50 मार दी, तो आप उसको अपर ऑर्डर बैट्समैन, उसको आप ओपनर थोड़ा ना बना दोगे, है तो वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन ना. बट जस्ट बिकॉज आपने उसकी लास्ट 2-3 इनिंग्स देख ली और आपने कह दिया कि बॉस दिस इज क्या कहते हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बट एक्चुअली ही वाज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन, उसकी एवरेज यही है,
बट जस्ट बिकॉज आपने जो 3-4 मैचेस का जो सैंपल लिया वो बहुत अच्छा सैंपल था जिसमें उसने बहुत रन मारे, इसीलिए वो उसका एवरेज यहाँ आ रहा था उन 3-4 मैचेस का. So on the basis of that, you are saying that this particular batsman is an upper order batsman, but actually he is a lower order batsman. क्योंकि आपका सैंपल लोडेड है. आपको और जब ज्यादा मैचेस खेले तो पता चलेगा कि अच्छा उसकी एवरेज इतनी है. समझ में आया निशा? ये चीज समझ में आई? तो आपने क्या किया? आपने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस इन दिस केस वाज दैट ही इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन. आपने रिजेक्ट कर दिया कि अरे बॉस ये तो हाफ सेंचुरीज मार रहा है पिछले 3-4 मैचेस में, एंड आपने उसको कह दिया कि ये तो हायर ऑर्डर बैट्समैन है. आपने रिजेक्ट कर दिया. बट एक्चुअली में यू आर मेकिंग दैट एरर, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग हेयर दैट 5% केसेस में मैं एरर कर दूंगा. सो इन दैट केस दिस एरिया रिप्रेजेंट्स रिजेक्शन रीजन. ये सारा रिजेक्शन रीजन है. बट ये रिजेक्शन रीजन ऑल्सो ओवरलैप्स विद द फैक्ट कि यहां पर आप एरर कर रहे हो. एरर करने की प्रोबेबिलिटी है यहां पर. सो दिस इज नथिंग बट अल्फा इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H0 was actually true, when actually में he was a lower order batsman. H0 was true. So this is nothing but a conditional probability. H0 true था but आपने reject कर दिया. This is what the ground truth is and this is what you have done. And क्योंकि what you have done does not conform with the ground truth, you have told he is a higher order batsman when he is a lower order batsman in the real sense. You have made an error, and that error is called as type error of rejecting a hypothesis when it's actually true. समझ में आया? पूछ लो guys. नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है. I am there to explain it to you, but I will not be there to explain it to you once your hypothesis testing in econometric comes. I will rush upon it like a bullet train. Then comes type 2 error. अब ये type 2 error क्या है? अब टाइप 2 एरर इज, सपोज हमारा ये था 18.5, हमारे सैंपल से जो वैल्यू आई वो आई 21. अब बिकॉज दिस 18.5 एंड 21 वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यू सेड दैट वी डू नॉट रिजेक्ट. और आपका रिजेक्शन रीजन जो था वो था ये वाला. आपका रिजेक्शन रीजन था ये वाला. तो इन दिस केस विल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और विल यू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस? Will you reject the null hypothesis or will you not reject the null hypothesis? All of you agree? You will not reject the null hypothesis. पक्का है ना कि हमारे रिजेक्शन रीजन के अंदर आ रहा है वो? ठीक है, रिजेक्शन रीजन के अंदर नहीं आ रहा, नॉन रिजेक्शन रीजन में आ रहा है. इसको हम बेसिकली, अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रहा है और एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ गया ये, तो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर. बट ये भी तो हो सकता है, डोंट यू थिंक, ये भी तो हो सकता है कि ये जो 21 आया ये भी एक फ्लूक था? why could have this been a fluke? क्यों हो सकता है ये फ्लूक? सोचो गाइस, ये फ्लूक क्यों हो सकता है? ये फ्लूक क्यों हो सकता है गाइस? एनीवन? ये 21 क्या है? ओ सॉरी, हमने H0 को 21 ले लिया, H1 को लिया, ये लिया है 21 अजम्पशन, और जो हमारा वो था वो 23 था सैंपल का. इस 21 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमारा अजम्पशन जो हमारा अजम्पशन था वो 18.5 की बजाय अब 21 हो गया, तो इस केस में मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा अपना नल हाइपोथेसिस. बट हो सकता है दैट यू आर एक्सेप्टिंग दिस नल, यू आर नॉट रिजेक्टिंग. इसको एक्सेप्टिंग की जगह एक्चुअली होना चाहिए यू आर नॉट रिजेक्टिंग this null hypothesis because it does not lie in this range. But ये भी तो हो सकता है कि while you are not rejecting this null hypothesis, the assumption that you have taken in itself is wrong. जो ये सैंपल आया it does not come from a distribution with normal distribution with mean as 21. ये जो सैंपल है ये भी तो सैम्पलिंग वेरिएंस की वजह से ये सैंपल जो है ये इस रेंज में आ गया. सो यू माइट बी नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस while you should have rejected it. So
the ground truth here is that you should reject this null hypothesis. You should have rejected the null hypothesis, but what you did was you did not reject it. This is another error that you made, and this error is called as type 2 error, or it is also called as beta. Alpha is the probability of rejecting a true H naught. Beta is the probability of accepting or not rejecting, not rejection वाले रीजन में आ गया, of false H naught. एक्चुअली में जो ग्राउंड ट्रूथ था वो 21 नहीं था, पॉपुलेशन का मीन 21 नहीं था, बट आपने कह दिया कि हाँ ये जो 23 आया है सैंपल ये इसी पॉपुलेशन से आया है. सो यू हैव मेड अनदर एरर, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 माइनस बीटा. अब 1 माइनस बीटा क्या होगा? कैन समवन टेल मी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 1 माइनस बीटा की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाउ कैन आई राइट इट? Simple use of Bayes theorem, guys. Simple use of Bayes theorem. 1 minus beta will be H naught is false, but you reject H naught. A correct decision लिया है. So that is called as power of the test. Power of the test is correctly reject आपने ठीक किया a false null hypothesis. The opposite of this, the complement of this is 1 minus beta. And what is that? ये premise तो same ही रहेगा, H naught is same, और ये हो जाएगा कि ये रिजेक्ट कर दिया. That is called as power of the test. When you are able to correctly reject a null hypothesis, and this is your overall structure. Actual situation, which is the ground truth, ground पे क्या है और sample से क्या है. Actual situation is that your H naught is true and you are able to, मतलब दैट मीन्स जो आप कह रहे थे कि वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है और उसका जो सैंपल्स है वो भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन दिखा रहा है, तो आपने करेक्ट डिसीजन लिया, करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ किया. इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होती है. आई शो यू हाउ. दिस इज अल्फा बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग. आपने क्या किया? रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर दिया आपने. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, आपने रिजेक्ट कर दिया जबकि एक्चुअली में वो ट्रू था. दिस इज, यहां पर क्या है, यहां पर आपने नॉट रिजेक्ट किया है, एंड H नॉट इज, दिस इज, ये क्या है, यहां पर H नॉट एक्चुअली में फॉल्स था एंड आपने उसको रिजेक्ट भी कर दिया. सो यू हैव टेकन द करेक्ट डिसीजन. सो दिस इज 1 माइनस बीटा, पावर ऑफ द टेस्ट, probability of false H naught, and you were able to reject. Type 2 error, where this is the probability that you did not reject the null hypothesis. So ये आपका बीटा है, ये 1 minus बीटा है. ठीक है. This is what the errors in hypothesis, and this concept should be absolutely crystal clear to you. Even if you don't understand 1 minus beta, 1 minus alpha, वो भी चलेगा, but alpha और beta समझ में आ जाना चाहिए. टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए. टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. पक्का क्लियर है गाइस? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 एरर? वंडरफुल, बहुत अच्छा. इसका एग्जांपल देके समझाते हैं. मैं यही सोच रहा था कि किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा मुझसे. इसमें आप क्या कह रहे हो? इसमें आपने वही क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं. अब आपने कहा, आपने अज्यूम किया कि एक प्लेयर है, उसका एवरेज जो है वो 21 उसका एवरेज है, एंड आप कह रहे हो कि वो यार लोअर मिडिल ऑर्डर का, ठीक है, और जो डेटा आया वो भी आपको यही बता रहा है. सो डेटा से जो आया वो एवरेज आई 23.5. तो क्योंकि 23.5 21 से पास में था तो आपने कहा कि यार ये लोअर ऑर्डर बैट्समैन ही है. ही इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन. हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? सिरिन और सिरिन, राइट? सिरिन. ये चीज समझ में आई कि वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन ही अज्यूम करके चला था हमने 21, और उसका एवरेज जो है वो भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन का ही है, तो हम वी सेड दैट ही इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन. ठीक है. बट एक्चुअली में this batsman was going through a lull.
इंग्लैंड की कंडीशन में खेल रहा था, ठीक है, बॉल इधर उधर मूव कर रही है और वो बेचारा रहाने की जैसे सिचुएशन, रहाने वाली सिचुएशन हो गई है कि बेचारे को बॉल टच ही नहीं हो रही है, बैट्समैन बहुत अच्छा है। अब एक्चुअली में ये जो बैट्समैन है ये बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, उसकी एवरेज 50 है, बट क्योंकि किस्मत बहुत खराब है, बाय चांस उसका जो लास्ट फ्यू मैचेस है उसका जो एवरेज आ रहा है वो 23 आ रहा है। तो आपने कह दिया एक हायर ऑर्डर बैट्समैन को, आपने कह दिया एक हाई ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को आपने कह दिया कि नहीं यार ये तो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। सो योर अजम्पशन वाज दैट ही इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन and the sample conform to it, but you are making an error here. He is actually a higher order batsman, but because of a sampling variance you declared him to be a lower order batsman. So what is the error that you made? The batsman was higher order, that means you should have, and you did not, what you did not do, you did not reject the null hypothesis, but actually में he was a higher order, that means the H naught was false, गलत premise था. He was a higher order batsman, but you did not reject the null hypothesis that he is a lower order batsman. Therefore you have made an error. That error is called as beta, a type 2 error. Probability of not rejecting a false hypothesis, error of accepting a false hypothesis, या not, actually accepting हम word use नहीं करते, हम not reject it. समझ में आया? पक्का गाइस? किसी और को अगर कोई डाउट हो समझ लो इस चीज को. एंड पावर ऑफ टेस्ट क्या है? पावर ऑफ टेस्ट इज जब आपने रिजेक्ट कर दिया कि बॉस ये तो हायर ऑर्डर बैट्समैन है और वो एक्चुअली में हायर ऑर्डर बैट्समैन ही था, एच नॉट वॉज फॉल्स, तो यू आर मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन. That is called as 1 minus beta, which is the power of test. आपने ठीक डिसीजन लिया. Similarly, 1 minus alpha is also taking a correct decision, rejecting a false hypothesis. इसका opposite होता है 1 minus alpha, but 1 minus alpha कहीं यूज नहीं होता, और इसका opposite होता है 1 minus beta. Is this entire concept clear, guys? पक्का सबको? I can assume now that you know your p value, test of significance, confidence interval, type 1 error, type 2 error, and power of test, point estimates, interval estimate, and properties of point estimate. ये सारी चीजें I can assume कि आप लोगों को अब आती हैं, कहीं कोई confusion नहीं है. Now if there is any confusion left, go through your statistics books again, and कहीं पर भी कोई confusion है एक और देख लो, and you will be able to understand हमारा जो discussion.